नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बकरीद का त्योहार शांतिपूर्वक मनाए, डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा। बीते नगर सभा कर्मियों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी। मंगलूर में सद्भाव कायम रहे, सामुदायिक नफरत खत्म हो, सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटक भाजपा नेता विजेंद्र ने कांग्रेस पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया, राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की दी चेतावनी। येदियुरप्पा ने कमल पर कन्नड़ का जन्मदिन से हुआ, वाली की बनी के लिए साधन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा कि किसी भी जाति व धर्म के त्योहारों को उनके रीति रिवाजों को प्रभावित किए बिना शांतिपूर्वक मनाया जाना चाहिए। उन्होंने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय में बकरीद त्योहार के अवसर पर अनाधिकृत पशुवध व परिवहन को रोकने के लिए जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। 7 जून को मनाए जाने वाले बकरीद त्योहार के दौरान अनाधिकृत पशु वध व परिवहन के साथ साथ ऊंटों के वध व परिवहन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए तथा उपायुक्त ने पुलिस विभाग पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों को 1 से 7 जून तक औरा तालुके के वनमारपल्ली व कमलनगर तथा हुलसूर तालुके के हुलसूर चेक पोस्ट व बीदर तालुके के शाहपुर गेट में चेक पोस्ट स्थापित कर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर मवेशियों ऊंटों की आवाजाही को रोकने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने नगर आयुक्त को बकरीद के दिन निकलने वाले कचरे का उचित तरीके से निपटान करने तथा शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिंजर पोल योजना के तहत गौशालाओं के लिए धनराशि जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। बीते नगर सभा कर्मियों का धरना एवं सत्याग्रह पहुंचा तीसरे दिन में आज भी नगर सभा कर्मी अपने धरने पर डटे रहे और यह धरना सत्याग्रह मंगलवार को शुरू किया गया था, जिसका तीसरा दिन है जब यह कर्मी अपना काम छोड़कर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांग पूरी नहीं करती तब तक यह धरना जारी रहेगा। कोई भी कर्मी काम पर नहीं जाएगा। कैमरामैन पुराज का कवरेज। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೌರ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 27ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇವತ್ತು 3ನೇ ದಿವಸದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಂ ನೌಕರರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ GPF KGIDಯನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಲಾಗು ಮಾಡಬೇಕು। ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾಯಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನುದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇತನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ FSC ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇತನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ। ಈ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಸೂಪರ್ವೈಸರು, ಲೋಡರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲರ್ ಚಾಲಕರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ, ಒಂದು ಜೀವ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹಿಂದಿನ CM ಸಾಹೇಬರಾದಂಥ SM ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕುಂದುತ್ತದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಖರಾಬ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ। ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ। ಅದೇ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರು, ನಾವು 2 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶಾಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆವು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಅದು ನಮ್ಮವರೇ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಚಿವರು, ನಾವು 2 ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತಾಗ ಮಳೆ ಹೊಂಟಿದ್ದವಾಗ ಬಂದು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬೀಳಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ದೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ। CM ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ನಾನು ಅನ್ಯಾಯ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತು ಬೇಡ ಸಾಬ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ। ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ। ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಂಥ ನೌಕರರು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಾಗ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ಸತ್ತರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಮುಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೌಕರದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಂಟರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। लड़ना अपना एक हक है और हक इसलिए है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको जो संविधान दिया है उसके संविधान के मातहत हम ये कर रहे हैं। और आज जो ये समस्याएं जो पैदा हो रही हैं, ये समस्याओं की मेन वजह क्या है हम लोगों को समझनी चाहिए। आज आप लोग आज जो काम करते हैं आप लोग, ये हम लोग जो है ना सुकून से रहते हैं। आज 3 दिन से आप लोग स्ट्राइक में बैठे हैं, 3 दिन से शहर की हालत बदतर हो चुकी है। आज इसके बारे में हम गौर करें, देखें कि भाई हालात ऐसे क्यों पैदा हो गए, जो मालूम हुआ कि भाई स्ट्राइक पे हैं आप लोग।
तो मैं बोलता हूँ आप लोगों को इसका सबसे ज़्यादा तो अहमियत आपको देनी चाहिए। सीएमसी जो आज हमारे जो बैक साइड पीछे पड़ी हुई है, तुम उनको लाग करो, हुआ करो, नको बोलो आप। कि मैं अभी आते थे सुना हमारे भाई ने ऐलान कर रहे थे केबी वाले बिजली वाले नको डालो, लाइटा नको डालो, नहीं सुनते वो लोग, क्योंकि उनकी समस्या नहीं है, हमारी समस्या है। पहले हम इसको लाग डाल देना, पहले गेट को लाग डालना, ऑफिसरों को अंदर डाल के लाग करना, तब हमारा काम होता है। क्योंकि आज हम लोगों को बेवकूफ बनाकर ये लोग जी रहे हैं। आज सीएमसी में जो परिस्थिति है आप देखो, वहां पर इतना खुल्लतन माहौल बन चुका है, उसका कोई पुरसा निहाल नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोग जो मेहनत करते हैं ना, ये जिगर वाले ही कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं करते। तुम 2 मिनट की वो बर्दाश्त नहीं करते। अभी हमारे एक साथी ने बताया कि एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, ब्रिम्स हॉस्पिटल में, वो उसी की वजह से पेशेंट बना है, तो उसकी तनख्वाह को रोककर अपना घर भर लेकर जो है अपनी जिंदगी कर रहे हैं लोग। पहले आप लोगों की तनख्वाह देना, बाद में दूसरों की तनख्वाह देना। तनख्वाह तो तनख्वाह और बात है। आज मैं बता रहा हूं मैं आपको, सबसे बड़े हमारी बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि हम हमारे संविधान पर अमल नहीं कर रहे। हम खुद अमल नहीं कर रहे। बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है, बाबा साहब ने हमें जो ये गवर्नमेंट चलाने का हक दिया है, हम ऐसे लोगों के हाथों में हक दे दिया कि हमारा हक छीनने वाले बन गए लोग। हक देने वालों को नहीं बिठा रहे हम लोग, हमारी बात करने वाले कोई नहीं बिठा रहे, हमारी सुनने वाले को हम म्यूनसिपालिटी का इसमें नहीं बिठा रहे। हम जो है ना, हमारा वोट ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो लोग हमको ही जो है ना कुचलने के तैयार है। वो लोग मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय महाविद्यालय और वर्ष 2025-26 के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आवासीय विद्यालय महाविद्यालय एवं मौलाना आजाद मॉडल स्कूल में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 1 जून 2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक शासकीय प्री यूनिवर्सिटी कन्या महाविद्यालय खाना बीदर सिद्धार्थ संयुक्त प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा संस्थान जनवाड़ा रोड बीदर एवं विद्यारण्य हाई स्कूल बीदर जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जिलाधिकारियों ने एक बयान में कहा कि अम्बेडकर सर्कल जनवाड़ा रोड स्कूलों में सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जिला कार्यालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बीदर से प्राप्त करें। विशेष संवाददाता की रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को मंगलूर में एक मुस्लिम युवक की हत्या के बाद कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि वहां सांप्रदायिक सद्भाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तटीय जिला बटवाल 27 मई को एक युवक की हत्या के बाद उबल रहा है। वहां 30 मई तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री गुरुवार को कांग्रेस MLC VK हरिप्रसाद के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण कन्नड़ जिले की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। हरिप्रसाद के घर का दौरा करने के बाद सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा, हमने मंगलूर में मौजूदा स्थिति पर सामान्य चर्चा की। इन क्षेत्रों में सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, हमें वहां सद्भाव लाना चाहिए, जिसके लिए हमने चर्चा की। उन्होंने कहा हरिप्रसाद को मंगलूर आने के लिए कहा है।
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर विभिन्न मामलों में भाजपा विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया। विजेंद्र ने कहा कांग्रेस सरकार भाजपा सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने विपक्ष को धमका रहा है। उन्होंने कहा कलबुर्गी में मंत्री प्रियंक खड़गे के खिलाफ हमारे हालिया विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा एमकेसी के नेता जिला प्रशासन के खिलाफ बात की। बाद में उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस सरकार तीसरे पक्ष के माध्यम से एफआईआर दर्ज कर। विजेंद्र ने कहा विधानसभा से 18 भाजपा विधायकों को निलंबित करना लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। राज्य सरकार के कई हालिया फैसलों को अतार्किक बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार सरकारी अस्पताल में जन औषधि केंद्रों को बंद करने के हालिया आदेश को वापस लेने में विफल रहती है तो भाजपा पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि अभिनेता कमल हासन का कन्नड़ भाषा से संबंधित विवादित बयान निंदनीय है। उन्होंने कहा सभी ने इसकी निंदा की है, किसी को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बुधवार को मैसूर में चामुंडी हिल के दौरे के दौरान मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने विधायकों शिवराम हेब्बार और एसटी सोमशेखर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिन्हें भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। येदियुरप्पा ने कहा मुझे आज सुबह देवी चामुंडेश्वरी देवी के दर्शन करने का मन हुआ, इसलिए मैं मंदिर गया। मैंने अपने पोते की शादी से पहले देवी का आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना की। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने राज्य भर में जन औषधि केंद्रों को बंद करने के कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की और इसे गरीब विरोधी कदम ठहराया, जिसके वंचित समुदाय को नुकसान होगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को लिखे पत्र में सोमन्ना ने निराश व्यक्त करते हुए कहा कि इन केंद्रों के बंद होने से जो सस्ती दवाएं और शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरण उपलब्ध कराते हैं, गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए जीवन प्रभावित होगा, जो कम लागत वाली स्वास्थ्य देखभाल के लिए इस योजना पर निर्भर है। उन्होंने लिखा मैं राज्य के इस निर्णय से बहुत निराश हूँ। न केवल जन औषधि केंद्रों के लिए नए आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है, बल्कि मौजूदा केंद्रों के लाइसेंसों के नवीनीकरण से भी इनकार कर दिया है। सोमन्ना ने बताया कि जन औषधि योजना 15 साल से अधिक समय से चल रही है और इसका उद्देश्य गरीबों के लिए चिकित्सा व्यय को कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लागू किया जा रहा है। सोमन्ना ने कहा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया लंबे राजनीतिक अनुभव के बावजूद जन औषधि केंद्रों को बंद करने का निर्णय जन कल्याण के खिलाफ प्रतीत होता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता प्रियंका पांडे भीड़ के हमले से संबंधित 2024 के मामले में फरार आरोपी मोहित महतो उर्फ साहिल को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के भाटपारा निवासी महतो ने एनआईए की टीम से लगातार प्रयासों और विभिन्न तकनीकी और मानवीय खुफिया विचारों के आधार पर गिरफ्तार किया। एनआईए ने कहा कि टीम उसके पास से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है, जिसकी जांच जारी है। महतो की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें पांडे और उनके साथियों पर 28 अगस्त 2024 को पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के आवास जाते समय हमला किया। राज्य पुलिस ने जहां 12 गिरफ्तारियां की, वही एनआईए ने मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने संघ परिवार पर दक्षिण कन्नड़ में विभाजनकारी और सांप्रदायिक माहौल पैदा करने का आरोप लगाया और मंगलूर में हाल ही में हुई सिलसिलेवार हत्याओं के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश ने संघ परिवार पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा की घटनाओं का फायदा उठाने का आरोप लगाया। शिवमोगा में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दिनेश ने कहा उनके पास अपने शब्द पर नियंत्रण नहीं और वे भड़काऊ बयान देते रहते हैं, यहाँ तक कि त्रासदी के समय में भी शवों पर राजनीति करते हैं। कहा कि दक्षिण कन्नड़ में हाल ही में हुई हत्याएं सांप्रदायिक घृणा और बदले की भावना से प्रेरित थी, जिससे तटीय जिले में भय और शांति फैल रही है। मंत्री ने कहा ऐसी घटनाएं न केवल जिले बल्कि पूरे राज्य की छवि को खराब करती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अध्यादेश लाने की कर्नाटक सरकार के कदम का ऐतिहासिक बताया। जोर देकर कहा कि पार्टी का दृष्टिकोण है जिससे वह हर राज्य में ले जाएंगे। मंगलवार को जारी अध्यादेश में कल्याण बोर्ड की स्थापना और गिग श्रमिकों के लिए एक समर्पित कल्याण कोष के निर्माण का भी प्रस्ताव है। गांधी के एक्स पर एक पोस्ट में कहा रेटिंग नहीं हक चाहिए, इंसान है हम गुलाम नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गिग वर्कर्स के शक्तिशाली शब्द मेरे साथ।
फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बकरीद का त्योहार शांतिपूर्वक मनाए, डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा। बीते नगर सभा कर्मियों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी। मंगलूर में सद्भाव कायम रहे, सामुदायिक नफरत खत्म हो, सीएम से मांग। तेनाड़ का भाजपा नेता विजेंद्र ने कांग्रेस पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया, राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की दी चेतावनी। येदियुरप्पा ने कमल पर कन्नड़ का जन्मदिन से हुआ, वाली की बनी के लिए साधन। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।